بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، امید ہے خیرافیت ہوں گے. تفسیر العلیم سورۃ الانعام سبق نمبر 279 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. عزیز طلباء، سبق انشاءاللہ ان اللہ فالق الحب والنوى سے لے کر آیت نمبر 98 یفقہون تک ہوگا. تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالی ہی دانے اور گٹھلی کو پاڑنے والا ہے، پھاڑنے والا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی ہی فالق، پھاڑنے والا ہے، الحب والنوى، دانے اور گٹھلی کو. یخرج الحی من المیت، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے. ومخرج المیت من الحی، اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے. ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، یہ اللہ ہی ہے جس کی ایسی قدرت ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو. یہ اس طرح پچھلی آیاتوں میں کفار مشرکین کی ہٹ گرمی اور حقائق اور نتائج اور ان کی غفلت کا تذکرہ تھا. تو یہ سب خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سب خرابیوں کی اصل بنیاد اللہ تعالی اور اس کی بے مثال علم سے، اس کی بے مثال قدرت سے بے خبر ہونا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہٹ درمی کے علاج کے لیے اپنے وسیع علم اور عظیم قدرت کے چند نمونے اور کچھ انعامات اور احسانات جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیے ہیں، اس کا یہاں پر ذکر فرمایا. فرمایا ان اللہ خالق الحب شاق الحب، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والے ہیں دانے کو. الحب جمع حبت، حبہ کی جمع ہے، حبت ان کی جمع ہے، دانے کو کہتے ہیں. عن النبات، نباتات سے، یعنی وہ دانے سے ہرے بھرے پھول نکال لیتا ہے. جیسے کہ گلاب کے پھول کا دانا ہوتا ہے، وہ لگ جاتا ہے تو اس سے گلاب کا پھول نکل آتا ہے. اس لیے بیج ہوتا ہے تو بیج سے اللہ تعالیٰ ہرے بھرے گندم بنا نکال لیتا ہے. والنوى، اور گٹھلی کو پاڑنے والے ہیں. عن النخل، کھجور کے درخت، یعنی گٹھلی سے کھجور کے درخت نکالنے والے ہیں. ایک گٹھلی ہوتی ہے، اس کو زمین میں ڈال لیتے ہیں، پھر اس سے کھجور کا کنا درخت جو ہے وہ نکل آتا ہے. صرف کھجور مراد نہیں ہے، کھجور کی گٹلی، نوا کھجور کی گٹلی کو کہتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی بیر کی بھی گٹلی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بیر کا درخت نکال لیتے ہیں. ہر نوعیت کے، ہر قسم کی نوع کے درخت مراد ہے. یخرج الحی من المیت، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے. انسان وطائر، جیسے کہ انسان اور پرندے کو، من النطفۃ والبیضۃ، انسان کو نطفے سے نکالا اور طائر کو بیضہ یعنی انڈے سے نکالا. یہ لفظ نشب مرتب ہے. پھر انسان وطائر من النطفۃ البیضۃ، کہ انسان کو نطفے سے اور طائر کو بیضہ سے نکالا. تو یہ ہے زندہ کو مردہ سے نکالنے کی مثال. یخرج الحی من المیت، یہ جملہ ہے، ممکن ہے کہ ان کی خبر ثانی ہو، ان کی خبر اول فالق الحب والنوى ہے، اور دوسری خبر یخرج الحی من المیت ہوگی، یہ بھی ممکن ہے. اور ایک ترتیب ہوتی ہے کہ جملہ مستانفہ ہے، یخرج الحی من المیت الگ سے جملہ ہو. ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والے ہیں اللہ تعالی زندہ سے مردہ کو. المیت کی مثال بھی ہے سارے جلالے میں، النطفۃ والبیضۃ، جیسے کہ نطفہ اور بیضہ یہ مردہ زندہ سے نکلتے ہیں، انڈا بھی اور نطفہ بھی، نطفہ انسان سے نکلتا ہے. ذالکم ای الفالق المخرج، یعنی یہ پھاڑنے والے اور زندہ سے مردہ نکالنے والے، مردہ سے زندہ نکالنے والے. اللہ، یہ کون ہے؟ کہ اللہ تعالی ہے. فأنا تؤفکون، تم کہاں بھٹک رہے ہو، تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو. کیا مطلب؟ فکیف تصرفون عن الایمان، تم کہاں ایمان سے پھر کر جا رہے ہو. مع قیام البرہان، دلیل کے قائم ہونے کے باوجود، ان سب دلائل کا تمہیں پتہ ہے، ان سب چیزوں کا، مخرج المیت من الحی خالق الحب والنوى، ان سب چیزوں کا تمہیں پتہ ہے، تو تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو. تو یہ استفہام انکاری ہوا. خالق الاصباح، اللہ تعالی صبح کا نکالنے والا ہے. اس کا عطف بھی وہی خالق الحب کے اوپر ہے کہ اللہ تعالی صبح کا نکالنے والا ہے. وجعل اللیل
सकनन, और उसी ने रात को सुकून का वक्त बनाया, वश्शम्स वल कमर हुस्बानन, और सूरज और चांद को एक हिसाब का पाबंद बनाया। ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये सब कुछ उस ज़ात की मनसूबाबंदी है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है और इल्म भी कामिल है। जी, फिर फरमाया कि अल्लाह ताला सुबह को फाड़ने वाले हैं, यानी अल्लाह ताला की मशीयत और इरादे से रात की तारीकी जो है वो चली जाती है और दिन की रोशनी फूट जाती है उससे, और सुबह नमदार हो जाती है। और जअल लैल सकनन, कि उसने रात को जो है ना आराम की चीज बनाया, कि दिन में इंसान काम काज करता है, मेहनत करता है, थक जाता है, उसको आराम की जरूरत होती है और नींद भी आती है, तो रात को नींद के लिए जो आराम की जगह है वो बना दिया। जी तफसील देखिए, फालिकुल इस्बाह मस्दरुन बमाना सुबह, इस्बाह जो है ना अस्बाह युस्बिहु इस्बाह बाब इफ़ाल से मस्दर है, कि सुबह के माने में यानी सुबह हो जाना, सुबह नमदार हो जाना। तो फालिकुल इस्बाह का मतलब क्या होगा? इशाक़ उमूद सुबह, यानी सुबह के सुकून को फाड़ने वाले हैं। जो सुबह का सुकून है इससे मुराद सुबह काज़िब है, तो सुबह सादिक होने से पहले पहली नमदार होती है, तो फरमाया कि उसको फाड़ने वाले हैं, उसको जब अल्लाह ताला फाड़ देते हैं तो फिर सुबह हो जाती है। तो वो अव्वल मा यब्दू मिन नूरिन नहार अन ज़ुल्मतिल लैल, तो साहिब जलालैन उमूद सुबह की तारीफ कर रहे हैं कि वो जो सुबह की रोशनी का वो पहले ही वो रोशनी होती है जो कि ज़ाहिर होती है अन ज़ुल्मतिल लैल, रात की तारीकी में। तो ये जो सुबह काज़िब होती है ये रात की तारीकी में आ जाती है, और थोड़ी सी रोशनी सुबह सफेद सी रोशनी होती है, तो अल्लाह ताला उसको फाड़ देते हैं, उस अंधेरे को फाड़ देते हैं, और फिर सुबह उस रोशनी को फाड़ के फिर अंधेरा हो जाता है और फिर उससे सुबह निकलती है। और जाइलुल लैला सकनन, ये एक और नुस्खे में है, इसके असल जो हम पढ़ते हैं वो जाइलुल लैला सकनन, कि अल्लाह ताला ने रात को सुकून की जगह बनाया। यस्कुनु फीहिल खल्क़ु मिन अत-ताब, यानी मखलूक उसमें सुकून करती है थकन से। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर तरह की मखलूक़ात रात में आराम करती है, अपनी थकन को ख़त्म करती है। अब ये जाइल होगा, जब जाइल होगा तो फिर ये इस्म फ़ाइल के माना में होगा और अल-लैल इसके लिए मफ़ूल बिही होगा। और अगर इसको फ़ेल बना लें जअल, तो जअल फ़ेल होगा और फ़ाइल इसका हुआ ज़मीर होगी जो कि अल्लाह ताला की तरफ लौट रही, और लैला मफ़ूल बिही होगा। सकनन मफ़ूल बिही है या मफ़ूल लहू है। वश्शम्स वल क़मर बिन्नस्ब, ये भी मंसूब है कि और सूरज और चांद को बनाया। अत्फ़न अला महल लैला, लैला के महल के ऊपर इसका अर्थ है, क्या मतलब? जैसे कि वो मंसूब है तो ये भी हालत नस्बी में है, जैसे कि वो जाइल के लिए मफ़ूल बिही बन रहा है तो ये भी मफ़ूल बिही बन रहे हैं। तो ये महल लैल का उनकी जरूरत तो उस वक्त पड़ सकती है जब जाइलुल लैल की क़िराअत हो। जब जअल फ़िल माज़ी की क़िराअत हो जअल लैल सकनन, उस सूरत में महल की जरूरत नहीं है, बल्कि वश्शम्स वल क़मर दोनों मातूफ़ होंगे अल-लैल के ऊपर, दोनों का इसके ऊपर अत्फ़ होगा। हुस्बानन, हिसाब करने की जगह बनाया। हिसाब लिल औक़ात, यानी औक़ात के लिए हिसाब के तरीक़ेकार के लिए बनाया सूरज और चांद को, कि इससे इंसान हिसाब करते हैं दिन और रात का। दिन हो गया और सुबह हो गई, ये वाला वक्त हो गया, दुहा का वक्त हो गया, जाफ का वक्त हो गया, ज़ोहर का वक्त हो गया, शाम मगरिब का वक्त हो गया, असर का वक्त हो गया। तो हिसाब किताब की जगह बनाया, हिसाब किताब के लिए जरिया बनाया है। तो अल्लाह ताला ने चांद और सूरज को एक खास हिसाब के लिए मुसख्खर फरमाया। तो इनकी गर्दिश होती है और इसकी गर्दिश से रात और दिन और फिर इसी तरीके से हफ्ते महीने बनते चले जाते हैं, और इससे इबादत के औक़ात और मामलात की जो तारीखें हैं वो भी मालूम होती है, क्योंकि जुम्मा का दिन कब है, रमज़ान मुबारक कब आएगा, हज की तारीख कब होगी, 10 ज़िलहज कब होगी, तो ये सब हिसाबात, सब जो उमूर है इसका जवाब चांद और सूरज की गर्दिश से मालूम होता रहता है। जी, अविल बाउ महज़ूफ़तुन, तो हुस्बान जो है ये इसका अतफ़ भी यानी सकनन के ऊपर है, सकनन के महल के ऊपर, एक तरकीब इसकी ये है। और दूसरा ये कि अविल बाउ महज़ूफ़तुन, या बा महज़ूफ़ होगा बिहुस्बानिन, इस तरह होगा बिहुस्बानिन, उस सूरत में वह हुआ हाल अन मुक़द्दर है, फिर फ़ेल मुक़द्दरा से ये हाल बनेगा उस सूरत में। तो बिहुस्बानिन यानी जार मजरूर महज़ूफ़ निकालेंगे। यजरियान बिहुस्बानिन, यानी वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। हमारी सूरत रहमान, जैसे सूरत रहमान में है वो शम्स वल क़मर बिहुस्बान, तो वहाँ पर बिहुस्बान
खुशबानन बाकी जार के साथ आया हुआ है। ज़ालिका अल-मज़कूर, यानी ये मज़कूरा रात और दिन का हिसाब और रात को जो है आराम की जगह बनाया। तक़दीरुल अज़ीज़, अपने मिल्कियत में जो गालिब है उसका मुकर्रर किया हुआ है। और अल-अलीम बिख़ल्क़िही, और अपने मखलूक को जो जानने वाले हैं पूरी तरह बाखबर है उसका मुकर्रर किया हुआ है। वो हिसाब किताब से उनके मुताबिक ही मुकर्रर करता है। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन-नुजूमा, तर्जुमा देखिए, और उसी ने तुम्हारे लिए सितारे बनाए। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन-नुजूमा, उसी ने तुम्हारे लिए सितारे बनाए। लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि, ताकि तुम उनके जरिए खुश्की और समंदर की तारीकियों में रास्ते मालूम कर सको। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, हमने सारी निशानियाँ एक एक करके खोल दी है। क़द फ़स्सलनल आयाति, हमने सारी निशानियाँ तफसील से बयान कर दी है ऐसी कौम के लिए जो कि इल्म से काम ले, जो कि जानती है। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन-नुजूमा, नुजूम नजम की जमा है, सितारों को कहते हैं। लितहतदू बिहा, ताकि तुम हिदायत का तुम सही रास्ता तलाश करो। फी ज़ुलुमातिल बर्रि, खुश्की के तारीकियों में, वल बहरि, और समंदर की तारीकियों में। फिर अस्वार, कहाँ पर, महल कहाँ होगा उसका, जब तुम सफर करोगे। क़द फ़स्सलना, बय्यना, फ़स्सलना का माना बयान किया कि बय्यना के माना में अल आयात अद-दलालात अला कुदरतिना, ज़ाहिरी आयात मुराद है, इस तरफ इशारा है कि हमारी कुदरत के ऊपर जितनी दलालात है उसको हम खोल खोल के बयान करते हैं। लेकिन ऐसी कौम के लिए यालमून, जो इल्म रखते हैं, तदब्बरुन, कि ऐसा इल्म जो कि तदब्बर वाला हो, सिर्फ महज ज़ाहिरी इल्म ना हो। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, और वही वो अल्लाह है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा, फिर हर शख्स का एक मुस्तक़र है, एक ठिकाना है, और मुस्तौदा, और एक अमानत रखने की जगह है। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून, हमने सारी निशानियाँ एक एक करके खोल कर बयान कर दी है मगर उन लोगों के लिए जो तफ़क्कुर करें, जो समझ से काम लें। जी वहुवल्लज़ी अंशअकुम, वही वो अल्लाह है जिसने पैदा किया तुम्हें। अंशअकुम अय खलक़कुम, यानी पैदा किया तुमको। मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक नफ्स से। वो एक नफ्स कौन है? ये आदम, आदम अलैहिस्सलाम। तो तमाम नौ इंसानी जो है वो आदम अलैहिस्सलाम से ही पैदा हुई है। मुस्तक़र्रुन मिनकुम फिर रहम, तो तुम्हारी एक करार पकड़ने की जगह है रहम में, और मुस्तौदा, और एक अमानत की जगह है इनको फिर सल्ब में। तो मुस्तक़र्रुन और मुस्तौदा की दो क़िराअतें हैं। एक क़िराअत इसकी है मुस्तक़िर्रुन इस्म फ़ाइल वाली, और मुस्तौदिउन इस्म फ़ाइल की क़िराअत है। और दूसरी क़िराअत है इसकी मुस्तक़र्रुन इस्म मफ़ूल वाली, और मुस्तौदिउन, यानी दोनों को इस्म मफ़ूल पढ़ेंगे। तो मुस्तक़िर्रुन का तो माना, जब मुस्तक़िर्रुन होगा तो इसका मतलब होगा कि तुम करार पकड़ने वाले हो, यानी माँ की रहम में जहाँ भी हो। और मुस्तौदिउन, और तुम ही अमानत रखने वाले हो। और जब इस्म मफ़ऊल का माना होगा उस मुस्तक़र्रुन और मुस्तौदिउन, वो इक़रार, उसमें फिर उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल है। मुस्तक़र्रुन के बारे में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुस्तक़र्रुन का माना है कि माँ के पेट में, जब माँ के पेट की वो जगह, वो करार पकड़ने की उसकी जगह जो माँ का पेट होता है, रहम जो होता है, तो उस वक्त तक जब तक वो उसकी पैदाइश ना हो जाए, ये उसका मुस्तक़र है। और मुस्तौदा वो कब्र की वो लहद है, कब्र में जहाँ उसको रखा जाएगा, वो अमानत वाली जगह वो कब्र है, कब्र मुराद है इससे। बाद हज़रात ने कहा कि मुस्तक़र ये माँ का रहम है, और मुस्तौदा सुल्बुल आगा, यानी वालिद की जो जगह है, वालिद का जो सुल्ब होता है वहाँ से निकल कर मनी निकलती है, वो मुस्तौदा है इसका। उसी के साथ ज़राइल ने भी लिया, मुस्तक़र्रुन मिनकुम फिर रहम, यानी तुम में से कुछ है जो कि रहम में होते हैं, मुस्तौदा तुम में से कुछ है जो कि सुल्ब में होते हैं, यानी अपने वालिद के सुल्ब में। और फिर फ़तह क़ाफ़ है, ये क़िराअत में क़ाफ़ की फ़तह के साथ है। ये दूसरी क़िराअत बता रहे हैं ज़राइल, क्योंकि हम पढ़ते हैं अय मकाना क़रार लकुम, यानी तुम्हारी करार पकड़ने की जगह, जहाँ तुमने करार पकड़ना है। रहमुल उम्मे, यानी वालिदा का जो रहम होता है वो मुराद है। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून मा युक़ालु लहुम, हम तफ़सील से बयान करते हैं आयातों को ऐसी कौम के लिए जो कि समझ रखते हैं उन चीज़ों की, मा युक़ालु लहुम, जो उनसे कही जाती है। जिस तरह आज का सबक बस इतना ही। आज का सबक जिस तरह हमने इन्नल्लाह ख़ालिक़ुल हब्बि वन नवा से लेकर आयत नंबर 98 यफ़क़हून तक पढ़ा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तफ़सीर ज़लालैन पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।